السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ برادران اسلام، اسلامی خواتین، عزیز بچوں اور بچیاں، تمام مشاہدین و مشاہدات، قرآن اور حدیث کی اہمیت اور اس کی افادیت کے تعلق سے یہ ہمارا تیسرا پروگرام۔ جتنے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے سب مبارکباد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ کوئی راستہ چلا جس راستے سے علم کا کوئی حصہ وہ سیکھنا چاہتا ہے، مفید علم، کتاب و سنت کا علم، انسانیت کے لیے کوئی بھی فائدہ مند علم، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسی راستے سے اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ آپ اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے پروگرام کے لنک کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے اتصال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی مبارکباد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نذر اللہ عمران سمع منی شیئا فبلغہ کما سمعہ رب مبلغ اوعى من سامع۔ تر و تازہ رہے ان کا چہرہ، تر و تازہ رہے ان کی ذات، اللہ رب العالمین ان کو تر و تازہ رکھے جنہوں نے مجھ سے کچھ سنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنہوں نے ہم سے کچھ سنا فوعاہا، پھر اس کو یاد کیا، فبلغہ کما سمعہ، پھر اس بندے نے اس کو جیسے سنا تھا ویسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بہت سارے لوگ جن تک پہنچائی جاتی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر طریقے سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان سے جو ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنے ہوتے ہیں۔ یعنی شاگرد کا شاگرد بسا اوقات چیزوں کو زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علم کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بہت کوشش کی ہے طب دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطہ میں رہتے ہوئے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہی کی کوششیں ہیں، انہی کی کاوشیں ہیں، انہی کی دوڑ بھاگ ہے، انہی کی محنت ہے جو پھل لائی ہے، اور ہم اور آپ آرام کے ساتھ گھر بیٹھے دین کو پا گئے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ انگلی جسے بھی آپ حرکت دیتے ہوں، اس کو آپ ذرہ سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا ذرہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ کے برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ ہم لوگ اس کے ذریعے سے کلک کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی انگلی ہے، اس کو حرکت دیتے ہیں، پورا پروگرام دوسرے تک ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ بھیجتے وقت ہم نہیں خیال کرتے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، لیکن اس پروگرام کو پھیلانے سے اگر کسی بھائی کا فائدہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے عقیدہ اور مسئلوں کو، منہج کو صحیح کر لے، تو جب تک وہ زندہ رہے گا، نیک عمل کرے گا، ہمیں اور آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں،
من दल अला खैर फलहु मिथलु अजर फाइलिही, जिसने किसी खैर पर किसी को उभारा तो उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना उस अमल पर अमल करने वाले को अजर मिलेगा। खाली हमने और आपने अगर पहुंचा दिया है, दूसरे लोग अमल करने लगे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, हम और आप मुबारकबाद हैं कि हमें और आपको उसका अजर मिलेगा जो आदमी उस पर अमल करेगा। एक और हदीस में सुना दूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदआ, ये इस्लाम अजनबियत के आलम में फैला है, व सयऊद कमा बदआ, और एक वक्त आएगा वैसे हो जाएगा जैसे शुरू हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर खड़े होकर के कहते थे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो हकीकी माबूद सिर्फ अल्लाह है, कामयाब हो जाओगे। आपका घराना, आपका चचा अबू तालिब, अबू लहब, आपका चचा अबू लहब आपका मुखालिफ था। ये इस्लाम की अजनबियत थी शुरू में, कि भतीजा दावत दे रहा है इस्लाम की और चचा मुखालफत कर रहा है। इसी को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम अजनबियत के आलम में फैला है, कोई नहीं पहचानता था। जिन्होंने बाद में कबूल किया उनको भी पता नहीं था कि ये क्या चीज है, कौन सी दावत है। वह सयऊद कमा बदआ फतूबा लिल गुरबाई, गुरबा के लिए मुबारकबादी हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वमन हुमुल गुरबा या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल गुरबा कौन है? ध्यान देकर के सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लदीना युमसिकूना बिकिताबिल्लाहि हिना युतरक, गुरबा वो है जो अल्लाह की किताब को थामते हैं जब लोग उसे छोड़ते हैं, वयुहयूना बिसुन्नती हिना तुतफा, और मेरी सुन्नतों को जिंदा करते हैं जब लोग मेरी सुन्नतों को मारते हैं और बुझाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतूबा लिल गुरबाई, गुरबा के लिए मुबारकबादी। तो कौन है गुरबा? जो अल्लाह की किताब को थामते हैं जब लोग छोड़ते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हैं जब लोग मारते हैं। कितनी सुन्नतें आजकल छोड़ दी गई, उस इलाके में जहां सुन्नत मार दी गई है, अगर आपने जिंदा कर दिया तो जब तक लोग इस सुन्नत पर वहां उस इलाके में अमल करेंगे आपको अजर मिलेगा। सफर से जब घर आइए तो सबसे पहले मस्जिद जाइए, 2 रकात सलात अदा कीजिए, फिर घर जाइए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये सुन्नत बिल्कुल छोड़ दी गई है। हर कोई डायरेक्ट घर पहुंच जाता है, नहीं, सफर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में जाते, वहां 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे, कुछ दोस्त अहबाब से वहां मुलाकात होती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाते थे। तब तक घर वाले आगाह हो जाते थे कि फला साहब तशरीफ ले आए। आज ये सुन्नत छोड़ दी गई। तो इस तरह की सुन्नत जिसको लोगों ने छोड़ दिया है उस पर अमल करना, अगर उस इलाके में आप जिंदा करेंगे इसे, तो इसमें कोई शक नहीं, जब तक लोग इस पर अमल करेंगे आपको इसका अजर मिलेगा। ऐसे ही मगरिब की अजान के बाद फर्ज की सलात अभी इकामत उसके लिए नहीं हुई है, 2 रकात सलात है। बहुत सारी मस्जिदों में आप देखेंगे लोग हाथ बांध कर खड़े रहेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंतजार करेंगे कि मुअज्जिन साहब अजान खत्म करें, फौरन तकबीर कहें और फर्ज सलात शुरू हो जाए। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब वक़ाल फ़ी الثالثة लिमन शाअ, मगरिब से पहले सलात अदा करो, मगरिब से पहले सलात अदा करो। और तीसरी बार आपने कहा जो चाहे वो अदा करे, यानी मुअक्कद नहीं है लेकिन मशरूइयत है। साहबा कहते हैं जब अजान मगरिब की हो जाती थी, कुन्ना नतबादर इलल उस्तवानती, तो हम खंबे की तरफ भागते थे, किस लिए? ताकि उसको सुतरा बनाए और उसके आड़ में 2 रकात सलात अदा कर लें। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यराना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको वो 2 रकात पढ़ते देखते थे, फलम यअमुरना वलम यनहाना, तो वाजिबी तौर पर करने का हुक्म नहीं देते थे और ना ही उसे रोकते थे। कितनी मस्जिदों में मैं देख चुका हूं, जैसे मगरिब की अजान खत्म होती है फौरन तकबीर शुरू, वहां इस सुन्नत को मार दिया गया। वहां अगर आप इसको जिंदा करेंगे कि भाई कम से कम 10 मिनट रुको, जो लोग आ रहे हैं जमात पा जाए, और इसी तरीके से जो लोग मौजूद है 2 रकात पढ़ ले, क्योंकि इसकी मशरूइयत है। बैना कुल्ले अज़ानैन सलातुन, हर 2 अजान के बीच में सलात है। एक अजान से मुराद इकामत है और दूसरी अजान से मुराद अजान है। तो अजान और इकामत के बीच में
सलात है, यानी नफली सलात है, उसकी मशरूयत है, तो कम से कम मगरिब की अजान हुई है, अभी इकामत बाकी है, तो इस बीच में आप पढ़ लीजिए 2 रकात। और ये 2 रकात अदा करते हुए अगर सजदे में आपने दुआ किया, तो एक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि सजदे में दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि ला युरद्दु दुआ बैनल अदान वल इकामा, अदान और इकामत के बीच में दुआ रद्द नहीं की जाती। तो अदान और इकामत का बीच है, और फिर आप नफली 2 रकात सलात अदा कर रहे हैं, उसके सजदे में दुआ कर रहे हैं, तो यानी फजीलत का वक्त है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो ऐसे मौके को इंसान को गनीमत समझना चाहिए। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। कुरान और हदीस की अहमियत और किताब और सुन्नत की इत्तिबा के ताल्लुक से आज का भी दर्स है। कुछ नकात इसमें जदीद आएंगे जिसको आप ध्यान देकर के सुनो। सबसे पहली आयत जो मैं ले रहा हूं कुरान से, वो जरा देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। इत्तिबा करो उसकी जो आप लोगों के परवरदिगार के तरफ से नाजिल की गई है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, उसे छोड़कर दीगर लीडर, दीगर लोगों, दीगर कायदों की क़यादत की इत्तिबा ना करो। क्या मतलब? इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो चीज नाजिल की गई है उसकी इत्तिबा करो। क्या चीज हमारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल की गई है? 2 चीजें, एक कुरान जिसको वही मतलू कहते हैं, जिसकी तिलावत होती है सलात में, और एक हदीस रसूल जिसको वही गैर मतलू कहते हैं, जिसकी तिलावत नहीं होती। ये दोनों चीजें नाजिल की गई। कुरान के ताल्लुक से बातें हमारे जहन में पहले से मौजूद है कि हाँ कुरान नाजिल हुआ है, लेकिन हदीस रसूल के ताल्लुक से हम और आप समझते हैं कि सब चीजें बना करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिनके बारे में दलील मौजूद है कि हाँ ये चीज नाजिल हुई है, फिर भी वो कुरान में आप नहीं देखेंगे। जैसे क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ नबी, हमने आपकी निगाह को बार बार आसमान की तरफ उठते देखा, तो हमने आपका वो किबला बदल दिया, उस तरफ कर दिया जिसको आप पसंद करते थे। इससे क्या पता चलता है इस आयत से कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ चेहरा आपका कर दिया। ये हुक्म है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि सलात के वक्त खाने काबा की तरफ चेहरा कर लिया करो। यह आयत बताती है कि इससे पहले कोई हुक्म नाजिल हुआ है और वो हुक्म कुरान में कहीं नहीं मौजूद। इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के यहूदियों को जिला वतन करने लगे और बनु नजीर का आपने घेराव किया, तो बनु नजीर की आबादी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से बागात थे, कोई बड़ी फौज नहीं गुजर सकती थी आसानी से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरख्तों को काटा जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के काटने का हुक्म दिया तो आप पर एतराज हुआ कि नबी अमन और सलामती का दावा करने वाला और हरे भरे दरख्तों के काटने का हुक्म दे दिया। दुनिया के लोगों ने एतराज किया, पूरी कायनात के लोगों ने सुना कि एतराज हो रहा है, जवाब किसी के पास नहीं था कि वाकई हरे भरे दरख्त के काटने का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आसमान वाला जवाब दिया। जरा देखिए जवाब क्या दिया आसमान वाले ने। सूरह हशर उठा करके देखिए, वमा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमुहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह। ऐ मुसलमानों, जो लीना दरख्त को तुम लोगों ने काटा है या उसके जड़ों पर छोड़ दिया है, फबिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की इजाजत से हुआ है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर भेजा कि अगर बनु नदीर के कबीले तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है मुस्लिम फौज को, तो बनु नदीर के दरख्त काटे जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने कहा कि फबिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह की इजाजत से हुआ है। अब आप
قرآن کے بسم اللہ کے بعد سے سورہ ناس کے سین تک تلاش کیجئے، کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھیں جو قرآن کی حیثیت سے نہیں آتی تھیں، شریعت کو لے کر کے آتی تھیں، حکام لے کر کے آتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آرڈر کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ توجیہ ہو، کچھ ارشاد اللہ رب العالمین فرماتا تھا، اس حیثیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اور احادیث رسول ہیں ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ سورہ نجم اٹھائیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، اپنی چاہت سے نہیں بولتا ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو جب نبی شریعت کے مسئلے میں جو کچھ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو گویا کہ قرآن کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حدیث کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی کی اتباع ہے اور آپ کو کرنے کا یہاں حکم دیا گیا، کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو تم اس کی، پیروی کرو اس کی، پیچھے چلو اس کے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ میری بات رب کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، آپ میں سے کوئی صاحب کچھ بولے وہ رب کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی شخص کچھ کہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ جو نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی شکل میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں، اور ان دونوں کو ذکر کہا جاتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن حدیث دونوں ہے۔ اس معنی کو ہم بہت آسانی سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو کیا اہل ذکر سے مراد خالی قرآن والے؟ نہیں، قرآن و حدیث دونوں کا علم جس کے پاس ہے اس سے پوچھ لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کے پاس کسی چیز کے تعلق سے علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی کتاب و سنت کا علم جن کے پاس ہے ان سے پوچھو۔ تو ذکر سے مراد خالی قرآن نہیں ہے، قرآن و حدیث دونوں ہیں، اور دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آپ غور کریں، کمپیوٹر کا دور ہے، 6 لاکھ حدیث ابھی کمپیوٹر میں نہیں ہے، اور تنہا امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 194 ہجری میں پیدا کیا اور 256 میں ان کا انتقال ہوا۔ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد تھیں۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کی۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کتنی حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازبر کر لی اور دوسروں تک انہوں نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے، حدیث کی بھی حفاظت کی ہے، اور ہمیں اور آپ کو جس چیز کی اتباع کرنے کو کہا گیا ہے وہ جو چیز نازل کی گئی ہے۔ اس آیت کو میں ذکر کر دیتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 3 ہے، کوٹ کر لیجئے اور خود قرآن کھول کر کے دیکھیے آپ۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو اس کی، پیروی کرو اس کی، پیچھے چلو اس کے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے چھوڑ کر کے کسی بزرگ اور کسی قائد اور کسی سردار، کسی رئیس کی پیروی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ یہ پہلی آیت ہے جو میں آج لینا چاہتا تھا۔ دوسری آیت دیکھ لیجئے ذرا، بہت اہم ہے یہ آیت بھی، سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات ہے، کیا ہے وہ؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے، ان یقولوا، تو ان کا وتیرہ، ان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، آپ ہمیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، ہم نے سنا، احادیث رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، پیروی کی، ہم کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کس کا وتیرہ ہے؟ یہ مومن کا وتیرہ ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا سورہ نور آیت نمبر 51 میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کتاب و سنت کی طرف بلائے جائیں، اور اس وقت مومنین اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सर्टिफिकेट दे दी, क्या? व उलाइका हुमुल मुफलिहून, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही कामयाब लोग। दुनिया में कोई किसी को भी सर्टिफिकेट देता रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सर्टिफिकेट देता है किस बात पर? जब आपको बुलाया जाए कि आओ ये अल्लाह का फरमान है, जब हमें बुलाया जाए आओ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमने कहा कि भाई माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं आप, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुला रहे हैं, बिल्कुल मुझे तस्लीम है, और जो फैसला अल्लाह उसके रसूल का है वो भी मुझे तस्लीम है। अगर ऐसा हमने और आपने किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब। तो कामयाबी ही के लिए तो हम परेशान हैं। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में ठिकाना पा गया वही कामयाब हो गया। तो इस दुनिया के अंदर हमसे और आपसे जब मुतालबा किया जाए कि आओ अल्लाह की तरफ, आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी आओ कुरान की तरफ, आओ हदीस रसूल की तरफ, तो हमारा और आपका शेवा ये नहीं होना चाहिए, नहीं भाई आप किस तरफ बुला रहे हैं, हम तो फला साहब के पीछे चलते हैं, हमारा फिकही मजहब तो फला है। नहीं, कुरान ने ये नहीं कहा। कुरान ने कहा है कि मोमिन अगर है तो आपका वतीरा ये होना चाहिए, समिअना, हमने आपकी बात सुन ली, व अताना, और हमने पैरवी भी, यानी पैरवी हम करेंगे, लेकिन चूंकि मोमिन है वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तो अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस से ताबीर किया है, माजी से ताबीर किया है कि हमने इताअत भी समझो कि कर ली जब अल्लाह उसके रसूल की बात है। तो ये दो आयत आज कोट करना था। उसके बाद चंद हदीसें, जरा देखिए। इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत मशहूर हदीस, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नसीहत, खुतबा दिया, वाज किया, और ऐसा खुतबा आपका था कि आंखें बह पड़ी, आंखें अश्कबार हो गई, लोग रोने लगे, आंसुओं से लोगों की दाढ़ियां तरबतर हो गई। वो वजलत मिनहल कुलूब, और आपके इस वाद से, नसीहत से लोगों के दिल लरज गए, कांप उठे। जरा देखिए हदीस की इबारत। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की, मौइदतन, एक ऐसी नसीहत, ज़रफत मिनहल उयून, आंखें अश्कबार हो गई, वो वजलत मिनहल कुलूब, और दिल उससे लरज गए। फकुलना या रसूल अल्लाह, तो हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, इन हादिही लमौइदतुन लमौइदतु मुवद्दिइन, ये नसीहत तो ऐसे आदमी की लग रही है जो सफर करने वाला है, छोड़कर जाने वाला है, शायद वो बाकी नहीं रहने वाला है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी मरहले का खुतबा था। फमादा ताहदु इलैना, तो आप हमें क्या नसीहत करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप जरा दीजिए। काल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी बहनें, बहुत गौर से सुनिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत की। क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, ऐ मेरे सहाबा, हमने आपको छोड़ा है उजाले में, अंधेरे में नहीं। 13 साल मक्का में मैंने ट्रेनिंग की है आपकी, आपको ट्रेनिंग दी है, और 10 साल मदीना में, कमोबेश 23 साल हो गए, हमने मेहनत की है आपकी पीछे, आपको सिखलाया है। उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तुकुम अलल बैदा, हमने आपको रोशनी में छोड़ा है, लैलुहा कनहारिहा, इसकी रातें भी उजाली हैं दिन की तरह से, ला यज़ीगु अन्हा बादी, मेरे बाद नहीं गुमराह होगा, नहीं हटेगा इससे, इल्ला हालिक, मगर वही जो हिलाक होने वाला हो। तो जो किताब और सुन्नत की रोशनी में लकीर हमने खींच दी है, उसी पर चलना है, वही बदनसीब होगा जिसको गुमराह होना होगा, वही इसको छोड़ेगा। अब इस चीज पर हमें जोर देने की जरूरत नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खत खींच करके गए थे, जिसकी रोशनी में सहाबा की आपने ट्रेनिंग की थी, वो अल्लाह की किताब थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। यही वजह है कि हम पूरे मुसलमानों को दावत देते हैं कि आओ उसी उजाले की तरफ, जिस उजाले में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको छोड़ करके गए थे। हदीस को मुकम्मल कर लेते हैं।
वमन यइश मिनकुम, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया, और सुनो मेरे साहबा, आप लोगों में से जो कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो देखेगा इख्तिलाफ बर्पा होगा बाद में, बहुत ज्यादा, इख्तिलाफन कसीरा आपने फरमाया। फअलैकुम, उस वक्त क्या करोगे जब इख्तिलाफ होगा, कोई किसी तरफ बुला रहा होगा, कोई किसी तरफ दावत दे रहा होगा, किसी का कोई मनहज होगा, कोई किसी का कोई तरीका और तर्ज होगा, तो आप क्या करेंगे? आपने फरमाया फअलैकुम बिमा अरफ्तुम मिन सुन्नती, तो उस वक्त तुम्हारे लिए जरूरी है कि लाजिम पकड़ो मेरी सुन्नत को जो आप पहचानते हैं, वह सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के मनहज को अपनाओ। गौर की, जब इख्तिलाफ बर्पा होगा उम्मत में, लोग आपस में सरफटौल करेंगे, छीना झपटी मची होगी, मछली मराव का माहौल पैदा होगा, गर्म बाजारी होगी, लोग एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे होंगे, उस वक्त आप लोगों का सेवा क्या होगा? मेरी सुन्नत जो जान लोगे उस पर अमल करोगे, खुलफाए राशिदीन की जो सुन्नत और उनका जो मनहज पाओगे उस पर अमल करोगे। उसके बाद आपने फरमाया व अलैकुम बित्ताअ, और तुम्हारे लिए जरूरी है इताअत, व इन अबदन हबशियन, चाहे तुम्हारा अमीर एक काला कलूटा हबशी गुलाम बना दिया जाए तो उसकी भी इताअत करना। अब्दु अलैहा बिन नवाजिज, ये दांत की किचनियों से मजबूती के साथ पकड़ लो। सामने दांत से कोई चीज पकड़े, कोई खींच ले तो दांत उखड़ कर चला जाएगा, ये बगल की दांत से आप पकड़ेंगे तो जल्दी कोई नहीं छुड़ा सकता है। आपने फरमाया इसी नमाजिज के जरिए से मजबूती के साथ थाम लो। फइन्नमल मुमिनु कल जमलिल अनिफ, मोमिन उस ऊंट के मानिंद है जिसके नाक में नकील हो। उनकीदा हैसुमा उनकीदा इनकादा, जिधर खींचा जाता है उधर चला जाता है। तो हम और आप अगर मोमिन हैं तो गोया की किताब और सुन्नत के हम पैरोकार हैं। जैसे ऊंट के नाक में नकील लगी हुई है, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी की नकील हमारे और आपके नाक में लगी हुई है। जिधर किताब और सुन्नत घुमाए उधर हम और आप भी घूमे। यही मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लिहाजा कोई बंदा ये ना कहे नहीं हम तो फला को फॉलो करते हैं, हम तो फला की चीज को पसंद करते हैं, नहीं, किताब और सुन्नत जहां से भी आए उसे आप ले लीजिए, जिस तरफ से भी किताब और सुन्नत का इल्म मिले आप उसको ले लीजिए। शर्त यह है कि किताब की सही तफसीर करने वाला मौजूद हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सही तौर पर बयान करने वाला हो। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक हदीस और हम पढ़ लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशीन गोई की है, किताब और सुन्नत पर अमल करने वालों को एक दौर में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। यूं कहिए इस्लाम पर अमल करने वालों को, आप जिस माहौल में भी रहते हैं, दाढ़ी रख करके चलना आजकल कहते हैं बहुत मुश्किल है। खातून हिजाब में हो कहते हैं बहुत मुश्किल है। लोग जुमले कसते हैं, लोग इशारा करते हैं, लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, लोग बुनियाद परस्त कहते हैं, तहजीब सकाफत से दूर कहते हैं इनके यहाँ दुनिया की कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं। किनको? जिनके पास दाढ़ी हो और जिनकी खातून पर्दा करती हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जरा देखिए कि ऐसा दौर जब आ जाएगा और दीन पर अमल करने वालों को इस तरह से लोग उनके साथ व्यवहार करेंगे, ऐसा उनके साथ बर्ताव करेंगे, ऐसे लोगों के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जरा देखिए, हदीस बहुत वादे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कद याती अलन्नास ज़मानुन, आएगा लोगों पर एक दौर, अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही, उस दौर में लोगों के बीच में अपने दीन पर डटा रहने वाला, अपने दीन पर साबित कदम शख्स, अपने दीन पर साबित कदम खातून, कल काबिद अल जमर, ऐसे होंगे जैसे आग के अंगारे को थामे हुए हो हाथ। तो आग के अंगारे को हम और आप उसके शोले को अगर हाथ में लें तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, तकलीफ होगी, परेशान होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दीन पर अमल करने वाले को यही दिक्कत होगी, एक जमाना आएगा। आज के दौर में यही है। अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं दीन पर अमल कीजिए, 5 वक्त मस्जिद आइए हो जाइए, लोग कहेंगे इसका शायद किसी दूसरे संगठन से कहीं ताल्लुक है, या किसी और जमीयत जमात से मुतालिक है।
अरे ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा है। अल्लाह के मुअज्जिन ने निदा दी है, हय्या अला सलाह, आओ सलात के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। बंदा उस पर लब्बैक कहता हुआ मस्जिद की तरफ चला जा रहा है, उसके बावजूद आप क्या कहते हैं, इसका ताल्लुक शायद किसी संगठन से है, किसी जमीयत जमात से है, किसी बाहर कंट्री के किसी इदारे से है। ये सब तोहमतें क्यों? ये मुसलमान है, ये बंदा मोमिन है, ये अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को जानता है, ये मस्जिद जा रहा है अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने मकसद वजूद को बरोएकार लाने के लिए, तो उस पर ये सब जुमले क्यों कसे जाते हैं? तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर आएगा कि दीन पर अमल करने वाला उस शख्स की तरह होगा जो शख्स आग के अंगारे को पकड़े हुए हो, तो उसको तकलीफ होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं बतला चुका हूं पहले ही क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए मुबारकबादी है जो अल्लाह की किताब को थामते हैं, पकड़ते हैं मजबूती से जब लोग उसे छोड़ते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हैं जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मारते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुबारकबादी है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये दो हदीसें थी जिनको मैं पेश करना चाहता था सलफ के अकवाल की रोशनी में, सलफ़े सालिहीन यानी सहाबा और ताबईन के अक़वाल की रोशनी में चंद बातें। किस ताल्लुक से? कि किताब और सुन्नत पर अमल करो, किताब और सुन्नत की तरफ आए, किताब और सुन्नत ही कामयाबी का, किताब और सुन्नत ही को हम अपनाएंगे तब हमारा और आपका बेड़ा पार हो सकता है, तभी हम और आप नजात को पहुंच सकते हैं, तभी हम और आप सिरात मुस्तकीम पर आराम से गुजर सकते हैं। जरा देखिए सलफ क्या फरमाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यूशकु अन तुनज़्ज़ल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा, लगता है या मुझे खदशा है। ये कौन है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुफस्सिर कुरान, सहाबी रसूल, कहते हैं मुझे खदशा है कि आप लोगों के ऊपर आसमान से कंकर पत्थर की बरसात न हो जाए। आसमान से कंकर पत्थर की बरसात, कितना बड़ा गुनाह हम करने जा रहे हैं कि खदशा इसका जाहिर कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अक़ूल, मैं कहता हूँ, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व तक़ूलूना, और आपकी गलती है कि आप लोग कहते हैं, क़ाल अबू बकर व उमर, कि अबू बकर ने कहा और उमर ने कहा। यानी मैं जब कहता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, तो ऐसे मौके पर सबको इसे तस्लीम करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने ये कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और किरदार के होते हुए किसी दूसरे के कौल और किरदार को नहीं देखना है, ये कहना चाहते थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मिनट हम रुकते हैं। कौन है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? कौन है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हर बंदा जानता है। खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्दुल मौत में, आखिरी मर्द में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत के लिए अपने मुसल्ले पर कर दिया। और दूसरे कौन है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये शहीद है। उहुद पहाड़ पर आप चढ़े, उसके अंदर हरकत आई, आपने अपने पैर को मारा उहुद पे, कहा उसबुत उहुद, उहुद पहाड़ ठहर, मा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तेरे ऊपर इस वक्त एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। और कौन थे उस वक्त? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई थी कि शहीद हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक हैं, खलीफे अव्वल है। खलीफे अव्वल खलीफे सानी की बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के होते हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नहीं हम मुकाबला कर सकते। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अफदलु हादिहिल उम्मति बाद नबीहा अबू बकर व उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के सबसे अफजल लोग अबू बकर और उमर हैं। ये कौन कहते थे? अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस उम्मत के सबसे बेहतर तमाम मुफस्सिरीन, तमाम उलमा, तमाम हुक्काम, तमाम फुक़हा, तमाम मुज्तहिदीन,
सबसे ज्यादा बेहतर इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उसके बावजूद इनकी बातों की कीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के मुकाबिल में कुछ नहीं है। अब आप सोच लें, फिर दुनिया में कौन ऐसा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से उसकी बात का हम मुकाबला कराएं, मुआजना कराएं और तौलें कि ये फला इमाम ने कहा, ये फला बुजुर्ग ने कहा, ये फला आलिम की बात है, ये हदीस की बात है, और हदीस की बात को ऐसे हम टाल दें, ये इसकी गुंजाइश हमारे और आपके लिए कहाँ हो सकती है? ये सोचने की बात है। और ये किसने कहा? मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी बात देखिए, ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फकत कुफीतुम। देखो, इत्तिबा करो। इत्तिबा करने का मतलब जो सहाबा चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुजर गए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहो, यही काफी है। फकत वला तब्तदिउ, दीन के अंदर नई चीज इजाद करने की कोशिश मत करो। फकत कुफीतुम, तुम्हारे लिए वही काफी है जो कुछ सहाबा कर गए, जो सलफ़े सालिहीन कर गए, जो बुजुर्गान दीन कर गए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके चले गए, वही काफी है दीन के लिए। और दीन की कोई बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी नहीं। बुराई थी तो आपने उससे बचने के लिए कह दिया, अच्छाई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दे दिया, करने की तरगीब दी। कोई चीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा नहीं। लिहाजा जितने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कर रहे थे, जिसको दीन सहाबा मानते थे, उसी पर आप अमल कीजिए, नई चीज इजाद करने की कोशिश मत कीजिए। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, और आप भी सहाबी हैं, आप सब लोग जानते हैं। यहाँ एक नुक्ता है, जिक्र कर दूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सुन्नत के बड़े दिलदादा थे। तो किसी ने कहा कि आप हज तमत्तो का फतवा देते हैं। हज की 3 किस्में हैं, हज इफराद, हज क़िरान, हज तमत्तो। तो किसी ने कहा कि अय अब्दुल्लाह इब्न उमर, आप हज तमत्तो का फतवा देते हैं और आपके वालिद मोहतरम उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हज तमत्तो से रोकते हैं। उसको घूम करके देखा अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि कौन आदमी है। देखा उसे, चेहरा मिलाया, कहा अमरो अभी युत्तबा अम अमरो रसूलिल्लाह, मेरे बाप के हुक्म की इत्तबा की जाएगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तबा की जाएगी? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तो को पसंद किया है, तो मेरे बाप कौन होते हैं फतवा दे कि हज तमत्तो में ज्यादा बेहतर? नहीं समझता हूँ। लिहाजा इसकी मशरूइयत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं हज क़िरान की नियत ना किया होता और मैं जानवर मदीना से लेकर के ना आया होता, तो मैं उम्रा करके फारिग हो जाता, हज तमत्तो कर लेता। और आज उम्मत पसंद करती है, उम्मत करती है हज तमत्तो, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चाहा था। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे बाप की इत्तिबा नहीं की जाएगी, इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाएगी। अब गौर करें, ये सहाबा हैं, और आजकल हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में खड़ा कर देते हैं। और सहाबा किस मसलक पर थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनको मसलक देकर, मनहज देकर के गए, उसको हम नहीं सोचते। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो नाजी ग्रुप है, जो क़यामत के दिन कामयाब होने वाला ग्रुप है, वो कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और हमारे सहाबा हैं, उस पर जो होगा वही कामयाब होगा। तो हमें और आपको क्या परेशानी है कि जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस पर आपके सहाबा थे, उस पर हम ना रहें और कामयाबी का रास्ता ना तलाश करें अपने लिए, हम दूसरे रास्ता की तरफ जाएं और दूसरों को भी दूसरे रास्ता की तरफ बुलाएं? इसमें कौन सी फजीलत है? जरा गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि 73 फिरके उम्मत में होंगे, एक ग्रुप नजात पाएगा, सहाबा को दिलचस्पी पैदा हुई कि जरा पूछें कौन लोग हैं। आपने नाम नहीं बताया कि उनका नाम ये होगा। जरा नाम के ताल्लुक से ध्यान दीजिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि उनका नाम ये होगा। आपने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं, जिस मनहज पर, जिस तरीके पर, जिस मेथड पर मैं हूं, जिस पंथ पर मैं हूं और जिस पर हमारे सहाबा हैं, उसी पर जो होगा वो कामयाब होगा क़यामत के दिन। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने मनहज बताया है, तरीका बताया है, लेबल नहीं लगाया आपने।
आज टाइटल लगा लगा करके हम लोग घूमते हैं, बस टाइटल लगा लिए हो गए, लिख दिए हम अपने मदरसे पर, अपने मस्जिद में, मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात, मस्जिद अहले हदीस। बस अब चाहे अहले हदीस के मुताबिक अमल करें या ना करें, नहीं मेरे भाइयों, मनहज बताया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। घी के डिब्बे के ऊपर लिख दीजिए पानी, तो लिख देने से घी के अंदर जो, डिब्बे के अंदर जो घी है वो पानी में नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही पानी के डिब्बे पे लिख दीजिए पेवर दूध, तो लिख देने की वजह से डिब्बे का पानी वो दूध में नहीं चेंज हो जाएगा। तो हमारा मसलक कुछ और हो, किरदार कुछ और हो, अकीदा कुछ और हो, और टाइटल पीठ पर लगा ले क्या, अहले सुन्नत वल जमात, बस हो गए अहले सुन्नत वल जमात। तो फिर तो किसी भी बाटली पर और किसी भी डिब्बे पर कोई भी लेबल लगा दीजिए, जरा देखिए उसकी हकीकत बदलती है कि नहीं बदलती, करके देख लीजिए। तो मेरे भाइयों, नाम का मसला नहीं है, किरदार का मसला यहाँ पे है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनहज बताया, उस मनहज पर आप रहिए, उस मनहज को आप ना छोड़िए। उस मनहज को छोड़ेंगे तो हम और आप फिर दूसरी तरफ जाएंगे। और देखिए, हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, राजदार भी थे, मुनाफिकीन का नाम आपको मालूम था। कहते हैं इत्तकुल्लाह या माशरल कुर्रा, ऐ कुर्रा की जमात, अल्लाह ताला से डरो। खुजू तरीका मन क़ब्लिकुम, उनका तरीका लो, उनका रास्ता सीखो जो तुमसे पहले के लोग हैं। फवल्लाहि लइन सबक़तुम, अल्लाह की कसम अगर तुम उनसे सबकत कर गए, लक़द सबक़तुम सबक़न बईदा, तो बहुत दूर जा पड़े। अगर किसी मसले में हम ये गुमान करते हैं, नहीं ऐसा करो ताकि सहाबा से आगे चले जाओ, तो गोया कि हम सहाबा से आगे नहीं चले गए, हम बर्बाद हो गए। इसका मतलब ये हुआ सहाबा से ज्यादा अमल हम नहीं कर सकते, और सहाबा किराम से बेहतर हम नहीं हो सकते। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुन नास करनी, सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के हैं, सबसे बेहतर लोग मेरे दौर के हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लिहाजा हम और आप इस चीज को अच्छी तरह से जाने और इसके मुताबिक हम और आप अमल करें। एक कौल और पेश कर देता हूं, उसके बाद में आगे चलता हूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल और है, कहते हैं ये जी ओ कौम, एक कौम आएगी, यत्रुकून मिन सुन्ना, वो सुन्नत को तर्क करेंगे, मिसला हादा यानी अल इस्बा, ये उंगली के बकदर छोड़ेंगे सुन्नत बस। उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि पहले तो छोड़ेंगे थोड़ा सा, और फिर ऐसे ऐसे वो सब बुराइयां आएंगी जो तुम देखो। तो मतलब यह है कि दीन का थोड़ा सा हिस्सा आदमी पहले छोड़ता है, और जब उसमें सुस्ती बरतता है तो फिर और मजीद छोड़ता चला जाता है। लिहाजा जिसे दीन हम और आप समझते हैं, जिसे दीन कहा जाता है, उसे हम और आप बिल्कुल ना छोड़ें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, अयुन कसम मिन दीन व अना हय्युन, जब किसी ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, मुद्दाने नबूवत निकले, मदीना पर हमला करने वाले थे, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात को रोकने वालों के खिलाफ तलवार उठाई। लोग आए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए, तो उस वक्त कहा था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अयुन कसम मिन दीन व अना हय्युन, दीन के अंदर कमी कर दी जाए और मैं जिंदा हूं, यानी ऐसा नहीं हो सकता है। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था। तो मेरे बुजुर्गों, मेरी माए और बहनें, किताब और सुन्नत वो चीज है, वो अनमोल हीरे हैं कि जिन पर हम चलेंगे तो जैसे सहाबा कामयाब हो गए, दुनिया के अंदर सर्टिफिकेट मिल गई रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, तो हम वही काम करेंगे जो सहाबा किए थे, तो हमसे भी अल्लाह राजी होगा और हम भी अल्लाह ताला से राजी रहेंगे। ठीक है, वही का सिलसिला बंद है, हमें दुनिया में ये खुशखबरी नहीं मिल सकती, लेकिन सहाबा के मनहज पर रहेंगे तो कुरान की आयत हमारे लिए और आपके लिए भी है, हमसे भी अल्लाह राजी होगा, आपसे भी अल्लाह राजी होगा, और हम भी अल्लाह ताला से राजी रहेंगे। अल्लाह की किताब पर अमल करने का मतलब यह है कि हम अल्लाह से राजी हैं, कहीं से और सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का मतलब यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की हैसियत से हम राजी हैं। यही सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला से राजी होने का
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी होने का कि दोनों पर अमल करें, यानी किताब और सुन्नत पर, गोया कि हम राजी हैं। और जब किताब और सुन्नत पर अमल करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल भी हमसे और आपसे राजी रहेंगे। तो ये चंद अकवाल थे जिसको मैंने पेश किए। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक मैं पेश कर सकता हूँ। इमाम शाफी रहमुल्लाह का एक कौल पेश कर देता हूँ, जबकि अइम्मा अरबा का मैं इससे पहले दर्स में मैं पेश कर चुका हूँ। कहते हैं अजमअल मुस्लिमूना, ध्यान देंगे, बहुत नुक्ते की बात है। अजमअल मुस्लिमूना, सारे मुसलमानों का इजमा है, सबका इत्तेफाक है, अला, इस बात पर, अन्ना मन इस्तबानत लहू, कि जिसके लिए जाहिर हो गई सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिसके सामने ला करके उलमा ने खोल कर रख दिया, लो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, गोया की सुन्नत जाहिर हो गई मसले में, पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है। तो जब जाहिर हो गई, लम यकुल लहू अन यदअहा लिक़ौल अहदिन, फिर उसके लिए जायज नहीं कि किसी दूसरे के कौल की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दे। बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये हमें और आपको ध्यान देकर के सुनना है कि इमाम शाफी रहमुल्लाह कहते हैं कि जब सुन्नत रसूल पेश कर दी गई तो अब गुंजाइश नहीं है कि हम सुन्नत रसूल को छोड़ करके किसी और तरफ जाए। ये है इमाम शाफी रहमुल्लाह की बात। किरदार क्या रहा है सहाबा का और सलफ़े सालिहीन का, किस तरह से लोगों ने प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाया है, उसे हमें और आपको जानना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद सहाबे किराम ने कैसे अमल किया है, खुद आपकी जिंदगी में कैसे उन्होंने अमल किया है, बाद के लोगों ने अमल किया कैसे किया है, चंद अनमोल चीजें मैं जिक्र करता हूं, सुन लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, बाद रिवायत में है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद की तरफ आ रहे थे, गालिबन जुमा का दिन था, खुतबा हो रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में उन्होंने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिसू, बैठ जाओ। मस्जिद के बाहर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उनके कान में पड़ी, वहीं बैठ गए, खारिज अल मस्जिद, फजलसा मकानहु खारिज अल मस्जिद, मस्जिद के बाहर ही बैठ गए, हत्ता फरगा मिन खुतबतिही, यहां तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हो गए। फबलगा ज़ालिका अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची कि मेरी आवाज इजलिसू, बैठ जाओ, सुन करके हमारे एक सहाबी मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। आपने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तबाइयतिल्लाहि व रसूली, अल्लाह ताला तुम्हारे इस हिर्स में इजाफा करे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बारे में। ये गोया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, और जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। कि नबी की आवाज सुन करके कि बैठ जाओ, सहाबे रसूल ने अपने लिए दुरुस्त नहीं समझा कि हम चलते रहे और नबी की आवाज आ रही है कि बैठ जाओ। इस वजह से अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, या बाद रिवायात में है अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस तरह से अमल करके दिखाया। एक मिसाल और देखते, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा घर में बैठे हुए थे। उनके बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे बाप अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया ला तमनऊ निसाअकुमुल मसाजिदा, अपनी औरतों को मस्जिदों से मत रोको। यानी अगर फितने का दौर नहीं है, पर्दे का एहतमाम है, तो मस्जिद के अंदर जाने से उनको मत रोको। अगर वो चाहती है कि शिरकत करें तो सलात में शिरकत करने दो। ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने घर के अंदर अपने लोगों से बयान कर रहे थे। इदस्ताज़नुकुम इलैहा, जब वो तुमसे इजाजत तलब करें कि हम जाना चाहते हैं मस्जिद में, जाने दो। काल, रावी कहते हैं फ़क़ाला बिलाल इब्न अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के एक बेटे थे बिलाल, उन्होंने कहा वल्लाहि लनमनअहुन्ना, अल्लाह की कसम मैं उन्हें जरूर रोकूंगा, नहीं जाने दूंगा। काला फ़अक़बल अलैहि अब्दुल्ला, कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस बिलाल बेटे की तरफ मुतवज्जे हुए। फसब्बहु सब्बन, बहुत बुरा कलिमा कहा। सब माने तो गाली देना होता है, बहुत जद का सय्यन, बुरी तरह से। मा समिअतहु सब्बहु मिसलहु कत्तो, और उस तरह से सख्त कलिमा इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने नहीं सुना था।
کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ کی بیویاں اگر اجازت چاہیں کہ مسجد میں صلاۃ کے لیے میں جانا چاہتی ہوں تو جانے دو، اور یہ میرا بیٹا بلال کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم ہرگز نہیں جانے دیں گے، تو اس پر وہ غصہ ہو گئے کہ رسول کا فرمان تو یہ ہے اور تمہارا نقطہ نظر یہ ہے، تو ہمارا مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے ہمارا نقطہ نظر وہی ہونا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نظر تھا، لہذا پردے کا اہتمام ہو، فتنے سے علاقہ محفوظ ہو، تو خواتین مسجد میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، گرچہ ان کی سب سے بہتر صلاۃ وہی ہے جو اپنے بند کمرے میں ادا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں بیٹھ کر بیان کیا ہے جس مسجد میں ایک رکعت کا اجر 1000 ہے، مسجد نبوی، وہاں آنے سے بہتر بتایا آپ نے کہ اپنے گھر کے اندر پڑھے، یہ اس کی صلاۃ سب سے بہتر، لہذا اگر جانا چاہے، جواز تک کی بات جہاں تک ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر حرام قرار دیا گیا ہے کہ عورت مسجد میں آئے، مارکیٹ جائے کپڑا خریدے، شوہر کے لیے بھی کپڑا خرید کر لائے، بچوں کے لیے کپڑا خرید کر لائے، سب صحیح ہے، لیکن مسجد جائے صلاۃ کے لیے نہیں نہیں نہیں، فتنے کا دور ہے، نہیں جائے گی۔ یہ ہم نے اور آپ نے کیا میزان رکھا ہے؟ ہمارے یہاں ترازو کس چیز کا نام ہے؟ ہم ذہن کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، ذرا غور کریں۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ تھا۔ ایک واقعہ اور ذکر کر دیتا ہوں، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ کنکری ایسے پھینک رہا ہے، کھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا لا تخزف، کنکری کیوں پھینک، تو مت پھینکو، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ذلک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے، او کانا یکرہ الخزف، یا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے، وقال انه لا يصاد به صید، اس کے ذریعے سے تو نہ شکار کیا جا سکتا ہے، ولا ينقو بيدون، اور نہ کسی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين، لیکن یہ کنکری پھینکنا اسے کسی کے دانت میں لگے تو دانت ٹوٹ سکتا ہے، کسی کے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ اس کی جا سکتی ہے۔ ثم رآه بعد ذلك يقذف، تو عبداللہ ابن مغفل نے دیکھا کہ اس آدمی کو جس کو منع کیا پھر کنکری پھینک رہا ہے، فقال له احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے، اسے کھیلنے سے روکا ہے، وانت تخذف، اور تو برابر پھینک رہا ہے، لا اکلمک کذا وکذا، تجھ سے میں گفتگو ہی نہیں کروں گا، میں حدیث رسول سناتا ہوں اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت پر خود عمل کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں، دیگر لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پہنچائیں گے اگر آپ کو ملے گا، یہ نہ سوچیں پہنچایا لیکن لوگ سنتے ہی نہیں، پہنچایا لیکن لوگ عمل نہیں کرتے، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، تو دل کو مائل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن دعوت دینا، صحیح و غلط بتا دینا، یہ ہم سب کا کام ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، لہذا دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کریں، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت کا علم ہے اسے، سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کو پہنچا رہے ہیں اس کو جانیں، وضو کا طریقہ معلوم ہے، وضو کا طریقہ بتلائیں، کوئی دعا معلوم ہے اس دعا کو آپ بتلائیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اور اسی سے اسلام پھیلا ہے، اور باتیں تو بہت ساری تھی لیکن ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم